Hello everyone, in this video I am going to explain you about the introduction of NMR spectroscopy and its principle. So let's start with the introduction. The phenomena of NMR was first described by American physicist Felix Bloch of Stanford University and Edward Purcell of Harvard University in 1946, for which they both shared the Nobel Prize in 1952. Now let us understand the criteria of NMR spectroscopy, जिस बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो मॉलिक्यूल NMR एक्टिव है या इनएक्टिव, वो NMR स्पेक्ट्रा एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा. So in NMR spectroscopy, when spin quantum number is 0, that is I equal to 0, then molecule is in NMR inactive, मतलब वो NMR स्पेक्ट्रा नहीं शो करेगा. For example, C12, O16, S32. But when spin quantum number is more than 0, I is more than 0, then molecule is NMR active. For example, H1, C13, N14, O17, F19, P31, Cl35. तो इस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि मॉलिक्यूल NMR एक्टिव है या इनएक्टिव है. Principle of NMR spectroscopy is as follow. The nucleus of hydrogen atom possesses proton which behave as a spinning bar magnet because it possesses both electric and magnetic spin. Hence the nucleus of hydrogen atom generates a magnetic field. So let us consider this is our spinning proton. So our spinning proton can spin in any possible direction. It can spin in this manner, or any possible direction. But when it is placed in an external static magnetic field, the proton will either get aligned with the external magnetic field or will oppose the external magnetic field. वो या तो उसके साथ aligned हो जाएगा, parallel हो जाएगा external magnetic field के, या वो उसका अपोज करेगा. अगर वो पैरेलल होगा तो वो लो एनर्जी लेवल होगा, और अगर वो एंटी पैरेलल होगा तो वो हाई एनर्जी लेवल होगा. Now, in addition to the spinning motion, proton also perform a slower waltz-like motion in which the spinning axis moves slowly around the vertical axis. This is known as precessional motion. So हमारा प्रोटॉन जो स्पिन कर रहा है वो साइमल्टेनियसली वो एक प्रेसिशनल मोशन भी करेगा कि वो अपनी, अगर ये मेरी वर्टिकल एक्सिस है तो वो अपनी वर्टिकल एक्सिस के अराउंड प्रेसिशनल मोशन ऑल्सो एग्जिबिट करेगा. जैसे ये मेरा प्रोटॉन है, स्पिनिंग प्रोटॉन है, मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, वो अपने एक्सिस के अलोंग स्पिन तो कर रहा है बट वो प्रिसाइज भी करेगा लाइक दिस मैनर. अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि वो प्रिसाइज क्यों कर रहा है. सो द प्रिसिशन अराइजेस फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ स्पिन विथ अर्थ्स ग्रेविटी acting vertically downward. Therefore, it is also known as gyroscopic motion. Please note that the spinning frequency always remain constant throughout the motion, but the precessional frequency is directly proportional to the external magnetic field. जो हमारी precessional frequency होगी वो हमारी जो external static magnetic field लगाई है वो उसके directly proportional होगी. Now let us see the role of precessional frequency in NMR. When proton's precessional frequency is exactly equal to incident electromagnetic radiation, then only it will absorb EMR, that is electromagnetic radiation, and hence the resonance takes place. Therefore, proton will move from low energy level to high energy level, and this phenomena is known as nuclear magnetic resonance. इसका मतलब क्या है? जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो इंसिडेंट कर रहे हैं जो रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में है वो हमारी प्रेसिशनल फ्रिक्वेंसी के एकदम बराबर होगी, तब वो रेजोनेट करेगी. जब वो रेजोनेट करेगी तो हमारा जो प्रोटॉन है वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा. इसी पूरे फिनोमिना को हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहते हैं.
For better understanding, let us consider this is a spinning proton which is spinning in any possible direction. Now we have placed it in a external magnetic field, so it will acquire alpha position, that is it will get aligned along with the external magnetic field. अब हमने इस पर बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अप्लाई करे, तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसकी प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी के बराबर होगा तब वो क्या करेगा, वो अल्फ़ा पोजीशन से बीटा पोजीशन एक्वायर कर लेगा। जब वो ऐसा कर लेगा तब रेजोनेंस हो जाएगा और यही फिनोमेना को हम NMR कहते हैं। हम प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो लेट अस कंसीडर अ स्मॉल स्पिनिंग मैग्नेट। ये मेरा स्मॉल स्पिनिंग मैग्नेट है जो स्पिन भी कर रहा है और साइमल्टेनियसली प्रिसाइज भी कर रहा है। जब मैंने इसमें बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाल दी तो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारा ओमेगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो ओमेगा इक्वल्स टू गामा बी नॉट। अब ये हमारा ओमेगा क्या है? हमारा ओमेगा है एंगुलर प्रिसिशनल वेलोसिटी। गामा क्या है? गायरोमेट्रिक रेशियो, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई म्यू अपॉन HI। म्यू हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है स्पिनिंग प्रोटॉन का, I हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है, B नॉट इज़ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द लामर इक्वेशन ऑफ NMR, म्यू इज़ इक्वल टू गामा B नॉट अपॉन 2 पाई। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2 पाई न्यू इक्वल्स टू गामा B नॉट। इस को हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि गामा B नॉट दोनों में कॉमन है, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। हैंस हम अपना प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी न्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ NMR spectroscopy. So see you soon in the next video. Guys, please do like and subscribe my YouTube channel. Thank you.